विंडोज फॉर्म कैसे किया एक बार देख लो, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक, ऐड विंडोज फॉर्म, फॉर्म 2 आ रहा है, उसकी जगह पे नाम मैं दूंगा प्राइम एग्जाम्पल. The form is there. I want to increase it. And prime ABCD wise आप देखा जाए तो ABCDEFGHIJKLMN OP. P is the last, so prime number example is come to the last one. Now it is very important to understand the designing. For designing, we always go to the toolbox. In a toolbox, I want one label. I want one text box. I want one processing tool button. I want one label. I want one more label. I want to increase the size of all. So I make it right click, property. I go to the font, into the size. I make it 20. And you can see that one. The size of all tools increase. Label 1, right click, property. Into the property, I will go to the text property. There is label 1 is mentioned, but I want enter any number plus equal to. So it is there. Right click, property, checked. Answer is fine. Now the programming structure is prepared for prime number and all. मैं फॉर्म नंबर पे जा रहा हूँ, फॉर्म पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ. प्राइम नंबर एग्जांपल है, उसकी जगह पे मैं मेरा टाइटल दे रहा हूँ, check number is prime or not. So जो टाइटल मैंने वहाँ लिखा है प्रॉपर्टी में, टेक्स्ट में जो लिखा है फॉर्म के, वही मेरा टाइटल बना हुआ है. अब इसका लॉजिक लेने के लिए आप सब लोग जानते हैं, बटन पे डबल क्लिक करने से बटन की क्लिक इवेंट आएगी. वो हमने कैलकुलेटर में भी करी, मैसेज बॉक्स में भी करी, इवन ऑड में भी करी. तो हम लोग अब कोडिंग पार्ट में जा रहे हैं. So coding part is very important. I double click on it, and here I have to take variables. And how can we declare the variables in VB.NET? So first of all, dim x as integer, dim y as integer equal to 0, x equal to value of textbox1.text. ओके, तो अभी तक हमने किया क्या, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, ये जिसकी वैल्यू y की 0 है. यदि y की वैल्यू 2 आएगी तो नंबर प्राइम है, यदि y की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी तो नंबर प्राइम नहीं है. इसलिए हमने यहाँ पे ए कोडिंग करने के लिए दो वेरिएबल डिक्लेयर किए. वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको जिस कीवर्ड की ज़रूरत है वो कीवर्ड का नाम है डिम. डिम मीन्स डायमेंशन, एंड इनटू दैट डायमेंशन वी मेंशन द डेटा टाइप इंटीजर. नाउ वी वांट वन लूप, सो x, or we can take one more variable for here, dim x comma z as integer. for लूप ले रहे हैं, for z इक्वल टू 1 to x. अपने आप नेक्स्ट आ गया है,
x मतलब आप टेक्स्ट बॉक्स में 12 डालोगे तो 12 तक ये लूप चलेगी, 13 डालोगे तो 13 तक चलेगी. सो आई वुड लाइक टू रिपीट द लॉजिक. टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो हम लोग वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू x में जाएगी. 1 to x मतलब कि if you enter 13 in text box 1, then x will be 13 and loop will continue for 13 times. Now it is a decision making statement. We want x mod z equal to 0, then y equal to y plus 1. After loop completing, if y equal to 2, then label 3 dot text. So let me check it that is prime number or not. I'm going into Solution Explorer. I click property. I'm taking prime example because it is necessary. I execute the program. There is no error. Logic is there. I'm entering 13 number. When I click on check, CSPRX कन्वर्ट टू स्ट्रिंग किया हमने, एक बार फिर से रन किया. Look, 13 is a prime number, and if I enter in 14, 14 is not prime number. So here that program is working very properly. If we enter 10, 10 is not prime number, and for that we would like to make one space after is. So I execute the program again. This program is over here. Want to make it increase for some reason. 11. 11 is a prime number. Yes, it is. If we entering 18, 18 is not prime number. So it's a very simple program, and by this program, friends, we understand so many things. Number one, how we can declare variables and data type. Here in this example, x, z are variable, y is a constant value that is having an integer 0. I transfer text box 1 value to x. I transfer text box 1 value to x. I create a loop z equal to 1 to x, means if I enter 13 in text box 1, x value is 13 and this loop will continue for 13 times. यदि मैं text box 1 में 43 डालता हूँ तो x की वैल्यू 43 हो जाएगी और ये लूप 43 टाइम चलेगी. फिर अंदर चेक हो रहा है कि आपने जो नंबर डाला है 13, सपोज आपने टेक्स्ट बॉक्स 1 में 13 डाला तो 13 आएगा x में, z की वैल्यू 1 होगी. 13 1, यस, y की वैल्यू 1. फिर 13 2, 13 3, 13 4, 13 5, 13 6, 13 7, 13 8, 13 9, 13 10, 13 11, 13 12, और जब 13 डिवाइडेड 13 आएगा तो यस, y की वैल्यू 2 हो जाएगी. ये लूप जो आप देख रहे हैं 4 से 4z की लूप है वो पूरी हो जाएगी. y की वैल्यू 2 ही होगी तो आपकी वैल्यू कन्वर्ट टू स्ट्रिंग होगी, मतलब कि x की वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी, 13 स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी, भाग बन जाएगा किसका, इस प्राइम का. इसलिए लेबल 3 में दिख रहा था 13 इज अ प्राइम नंबर. फिर मैंने 12 डाला तो 12 डिवाइडेड
1, 12 divided 2, 12 divided 3, 12 divided 4, up to 12 divided 12. उस दौरान 12 के कितने डिवाइजर्स मिले? 1, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद। मतलब y की वैल्यू 6 हुई और y की वैल्यू 6 हो गई, तो इसका मतलब यह है कि वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए एल्स में जाएगा। एल्स आपकी स्क्रीन के सामने है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 6 हुई तो 6 इक्वल टू 2, कंडीशन रॉन्ग। कहाँ? एल्स। और एल्स में गया तो वो कहाँ जाएगा? लेबल 3 में। और x जो कि 12 है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। CSTR का मतलब है कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, और कन्वर्ट टू स्ट्रिंग करके वो उसका पार्ट बना देगा, और 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर। Same thing, if we want to understand this thing as a part of braking system, I press F11. Program execute. We are entering 7. I click on OK. My button click is activate. Y equal to 0. टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो 7 डाला था वो x का पार्ट बन गया है। देखिए मैं x के ऊपर कर्सर ले जा रहा हूँ, देखिए x की वैल्यू 7 हो गई है, कर्सर के ऊपर दिख रहा है। अब ये रूप 7 टाइम घूमेगी, 7 टाइम्स। 7 डिवाइडेड 1, यस, y की वैल्यू 1। देखना चाहते हैं आप? कर्सर में वहां ले जाऊंगा, y की वैल्यू 1 हुई। F11 की वैल्यू 7, z की वैल्यू 2, 2, 7, नो, नॉट पॉसिबल। एंड इफ अब x की वैल्यू 7, z की वैल्यू 3, 7 डिवाइडेड विथ 3, नो। सेम, 7 डिवाइडेड 4, नो। 7 डिवाइडेड 5, नो। 7 डिवाइडेड 6, नो। अब आप चेक कीजिए, x की वैल्यू 7 है, z की वैल्यू भी 7 है। 7 डिवाइडेड 7, यस। y की वैल्यू 2 हो जाएगी, अभी 1 है, F11। और अब चेक कीजिए, y के ऊपर रखता हूं तो 2 आ गया है। कर्सर नेक्स्ट से बाहर जा रहा है, y की वैल्यू 2, 2 बराबर 2, यस ऑफ कोर्स, लेबल 3। लुक, 7 इज अ प्राइम नंबर। आपके सामने स्क्रीन में आंसर आया है और 7 प्राइम नंबर है, आप जानते हैं। तो इस तरह से हमने ब्रेकिंग करके भी समझा है कि लूप किस तरह से घूमती है। और इस प्रोग्राम में CSTR, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, का मतलब क्या होता है? CSTR का मतलब है कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, इसीलिए 7 इज प्राइम नंबर इसलिए आया है कि आप जो भी वैल्यू डालोगे वो सब यहाँ पे आएगी आएगी और आएगी। इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद कर रहा हूँ, मैं कर्सर वाला ले जाके इसको बंद कर रहा हूँ, और मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्लिक करके 18 इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 18 को डिवाइड किया जा सकता है 1 से, 2 से, 9 से और 18 खुद से। तो उसके 4 डिवाइजर बने हैं, तो वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, बाय दिस पर्टिकुलर वीडियो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा टाइप, हाउ डेटा टाइप डिक्लेयर, इंटीजर डेटा टाइप को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए CSTR, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन हमने लिया, और इसी के साथ हमने प्राइम नंबर का प्रोग्राम पूरा किया। थैंक यू सो मच, डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा। थैंक्स अ लॉट।